ওআইসি এবং ন্যাম সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ সরাসরি নিন্দা করবে বলে প্রত্যাশা তেহরানের। আজকে ঢাকার ইরান দূতাবাসে একটা সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে যিনি ইরানের রাষ্ট্রদূত আছেন জলিল রাহমি জাহানাবাদী, তিনি বলছেন বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ, একই সঙ্গে ওআইসি এবং জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের सदस्य अर्थात नेमेर सदस्य। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, आपको बताएं कि ईरान ने बांग्लादेश को इजाज़त दे दी है कि अपनाए हुर्मत से वो अपना ऑयल टैंकर लेकर आ सकते हैं। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेकिन इसके ऊपर बांग्लादेश के ही बहुत बढ़िया एक तज्जियाकार हैं, एनालिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर एनालिसिस बेस्ड एक वीडियो बनाई है। वो वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे, उसको देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि देखें, ईरान को सिर्फ हमसे कुछ नहीं चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मॉरल सपोर्ट चाहिए। ईरान कहता है कि जो बांग्लादेश है वो हमारा ब्रदर मुल्क है, वो ओआईसी का मेंबर है। आपको पता है ओआईसी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर वो नैब का भी मेंबर है। नैब एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो मेंबर है वो ना ही अमेरिका को सपोर्ट कर सकता है, ना ही वो चाइना को सपोर्ट कर सकता है, यानी वो न्यूट्रल होता है ना। बांग्लादेश वो कह रहे हैं उसका भी मेंबर है, बांग्लादेश यूएन का भी मेंबर है। बांग्लादेश सिर्फ इसके ऊपर एहतजाज करे, हमारे हक में आवाज़ बुलंद करे, ये कहना था एम्बेसडर का ईरान के। और जो ये नईम साउथ कोरिया साहब हैं जिनकी ये वीडियो है, वो भी यही कह रहे हैं कि हमें सपोर्ट करना है ईरान को। और देखें, ईरान के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। इसके ऊपर मैं नहीं कह रहा, बल्कि सारी दुनिया कह रही है, इंडियन भी कह रहे हैं, लेकिन इंडियन हुकूमत नहीं कह रही। लोग तो मान रहे हैं इस बात को कि यार बेगुनाह लोगों को, स्कूल के बच्चों को मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, आयतुल्लाह अली खामनई को मार दिया, शहीद कर दिया, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर खबर ये भी आ रही है दोस्तों कि नेतन्याहू का जो भाई है लाडू नेतन्याहू, उसको मिसाइल हमले में मार दिया गया है। ईरान ने जो एयर स्ट्राइक, जो मिसाइल मारे, एयर स्ट्राइक तो नहीं क्योंकि उसके पास फ़ज़ाइया नहीं है, जो बैलिस्टिक मिसाइल मारता है ईरान, उससे जो इनका भाई है उसके घर के ऊपर कहा जा रहा है कि वो हमला हुआ है और वो मर गया है। ये खबरें भी आ रही हैं, लेकिन कंफर्म अभी तक इजराइल ने नहीं किया। तो दोस्तों, नईम साउथ कोरिया साहब क्या कह रहे हैं, उनकी आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड। ইরানে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ওআইসি এবং ন্যাম সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ সরাসরি নিন্দা করবে বলে প্রত্যাশা করছে তেহরান। অর্থাৎ ইরানে আগ্রাসী হামলাকারীদের বিরুদ্ধে মানে আমেরিকা এবং ইসরায়েল, তো এটা কিন্তু রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আমরা মনে করি ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকার তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে এই কাজটা করবে। অলরেডি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এই অভিযানের বিরুদ্ধে, এই হামলার বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে। তো নিন্দা জ্ঞাপন তো সবসময় কাজে দিবে না। ওআইসি এবং ন্যাম সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ সরাসরি নিন্দা করবে বলে প্রত্যাশা তেহরানের। আজকে ঢাকার ইরান দূতাবাসে একটা সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে যিনি ইরানের রাষ্ট্রদূত আছেন জলিল রাহমি জাহানাবাদী, তিনি বলছেন বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ, একই সঙ্গে ওআইসি এবং জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য অর্থাৎ ন্যামের সদস্য। সেই হিসাবে একটি আগ্রাসী শক্তিকে সরাসরি নিন্দা বা এর প্রতিবাদ করবে, এমনটাই আমরা আশা করি, আমরাও আশা করি। জামাত টেকনিক্যালি করছে, জামাতের যিনি প্রধান আছেন শফিক ভাই, তিনি আমেরিকার নাম না নিয়ে করছেন, বাট করছেন। তো বিএনপির পক্ষ থেকেও হামলার বিরুদ্ধে নিন্দা জানানো হয়েছে, কিন্তু ধরেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সরাসরি কোনো বার্তা দেওয়া, ইসরায়েলকে বার্তা দেওয়া, যদিও বাংলাদেশের সাথে ইসরায়েলের কূটনৈতিক সম্পর্ক নাই, তারপরেও ইরানের প্রত্যাশা যে আমরা এই ধরনের ভূমিকা নেব। আমরাও চাই বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এটা নেওয়া হোক। তবে সেই ক্ষেত্রে সরকার যারা থাকেন, যে বিদেশিদের কাছে তো আমরা তো ধন্যা দিয়ে চলা লাগে, বাস্তবতা হচ্ছে এগুলোর কারণে কেউ কোনো ভূমিকা নিলে, আপনি দেখেন স্পেনের মতন রাষ্ট্র যখন তাদের ভূমি বা ঘাঁটি আকাশ ব্যবহার করতে দিল না,
আমেরিকা তার বিরুদ্ধে শুল্ক যুদ্ধ এমনকি তারা দেখে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে দিছে, তাহলে সেইখানে আপনি বোঝেন বাকি যে রাষ্ট্রগুলো আছে তারা কোনো বক্তব্য দিতে, কোনো ভূমিকা নিতে, যারা আমেরিকার তাল্লুয়া চাটা লাগে, আমরা তো তাল্লুয়াই চাটি যে সরকারি আসে, সো আমরা কি আসলে এমন ভূমিকা নিতে পারবো? আমার মনে হয় আসলে পারবো না, সার্বভৌমত্ব এবং কি সার্বিক স্বার্থে। তো উনি বলছেন যে ইরান দীর্ঘমেয়াদে এই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা রাখে, আমাদের কাছে পর্যাপ্ত ড্রোন এবং মিসাইল সহ প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তি রয়েছে, আমরা অন্য কোনো দেশের কাছ থেকে লজিস্টিক সাপোর্ট চাই না, অর্থাৎ মেশিনারিজ আরো বিভিন্ন কিছুর সাপোর্ট লাগবে না, আমরা শুধু চাই একটি মুসলিম দেশ আক্রান্ত হলে অন্য মুসলিম দেশগুলো তার প্রতি সহানুভূতি এবং সমর্থন যেন প্রকাশ করে। আর ইরানে অবস্থানরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন রাষ্ট্রদূত। তেহরানে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছেন। তো তার বক্তব্য হচ্ছে যে প্রত্যেকটি মুসলিম দেশের উচিত যে তাদের ভূখণ্ড বা তাদের রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করে কেউ যেন এখানে অভিযান চালাতে না পারে, আমরাও এটা চাই। তো আশা করি সরকারের পক্ষ থেকে একটা কিছু করা হবে। ভালো থাকুন। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखी है, नईम सऊद कोरिया साहब इसके ऊपर तफसील से बात कर रहे थे कि किस तरह से अब जनाब जो बांग्लादेश है एक तो अपनाए हुर्मत से अपना ऑयल ला सकता है, यानी उस रास्ते का इस्तेमाल कर सकता है, बाकी दुनिया को इजाज़त नहीं है, लेकिन बांग्लादेश को इजाज़त दे दी है ईरान ने। इसका मतलब ये है कि ईरान भी बांग्लादेशियों के साथ प्यार करता है जिस तरह से बांग्लादेशी ईरान के साथ प्यार करते हैं। तो ये बड़ी एक डेवलपमेंट आज हुई है दोस्तों। इससे ये है कि जो ऑयल का बहरान है, किल्लत है बांग्लादेश में, वो ख़त्म हो जाएगी। और जो शॉर्टेज है, आपको पता है कि पेट्रोल पंप के ऊपर बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और दूसरा ये है कि बांग्लादेश किस तरह से अब ईरान के लिए आवाज़ बुलंद करता है। बांग्लादेश के लोग तो नो डाउट किस तरह से बड़े बड़े इज्तिमा, रैली, जलसे, जुलूस निकाल रहे हैं ईरान के हक़ में, लेकिन अब इम्तिहान है बांग्लादेश की हुकूमत का, यानी गवर्नमेंट का, वो इसके ऊपर क्या स्टांस लेते हैं, क्या मौक़िफ़, क्या स्टैंड लेते हैं। ये अब जो नई हुकूमत है तारिक रहमान की, उनका अब इसके ऊपर एक इम्तिहान है, क्या वो इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट जारी करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ये दोस्तों आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, जाइएगा कमेंट करेंगे और फिर हमें भी पता चलेगा भाई इस वक्त क्या हालात हैं, क्या बांग्लादेश सपोर्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। लेकिन बांग्लादेश मॉरली सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसकी हुकूमत भी करती है या नहीं करती, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।